Good morning, students. Let us continue with our topic population interactions, and we have studied about various interactions which occurs in a population, and our today's topic is commensalism. Let us have a look on the definition of this term. Commensalism, it is an interaction where one species is benefited and other is neither benefited nor harmed. यहाँ क्या होगा, टू ऑर्गेनिजम्स वो एक एसोसिएशन में रह रहे होंगे, एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होगा वहाँ साथ रहने से, लेकिन जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है नाइदर उसको कोई बेनिफिट होगा ना ही उसको कोई हार्म होगा, एंड दिस टाइप ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड एज कॉमेंसलिज्म. एग्जाम्पल इज एन ऑर्किड ग्रोइंग एज एन एपिफाइट ऑन अ मैंगो ब्रांच. See, this is a mango branch and here a plant is visible, a small plant is growing. So this small plant is getting benefit from this mango tree, and this mango tree doesn't have any harm or doesn't have any benefit. यहाँ पर ये छोटे से प्लांट को न्यूट्रिशन मिल रहा है, वो बहुत बड़ा प्लांट है तो उसको ज़्यादा इफेक्ट कोई भी उसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट उसका नहीं आ रहा. सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमेंसलिज्म. नाउ यू माइट हैव सीन कैटल एग्रेट्स एंड ग्रेजिंग कैटल्स. आपने देखा होगा कि कुछ गाय या भैंस जो हैं वो ओपन में जो है ग्रेजिंग कर रही होती हैं, घास खा रही होती हैं. इन मेनी ऑफ द स्मॉल बर्ड्स दे वॉक अलॉन्ग विद दीज कैटल्स. इनके साथ साथ जो है वो चलते हैं. वाई दे वॉक अलॉन्ग विद दीज कैटल्स? बिकॉज दे टेक द इंसेक्ट्स एज फूड. जब वो ग्रेजिंग कर रही होती हैं तो इंसेक्ट्स जो हैं वो सॉइल से बाहर आ जाते हैं और जो है उससे क्या होगा, दीज कैटल एग्रेट्स विल फीड ऑन दीज इंसेक्ट्स. सो here these cattle egrets, they are getting benefit, and grazing cattle means cow or buffaloes or grazing animals, they are neither benefited nor harmed. This is the picture. This is cow which is grazing and this is the bird of cattle egret. This cow is grazing and when the insects are coming out, this cattle egret will eat that. So it is the example of commensalism. Clownfish and sea anemone, it is also an example of commensalism. Here the fish get protection from predators which stay away from the stinging tentacles of the sea anemone. Sea anemone का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो इट हैज़ लॉन्ग टेंटेकल्स, और वो टेंटेकल्स जो हैं, ये जो फिश है क्लॉन फिश, ये उन टेंटेकल्स के पास रहती है. इससे क्या होगा, इस फिश के जो प्रीडेटर्स हैं, यानी जो फिश के ऊपर अटैक करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, वो उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएंगे. यानी कि टेंटेकल्स इज़ प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू द क्लॉन फिश. Here sea anemone is not getting any benefit, any harm, but the clownfish is benefit. This is the picture which is showing the tentacles of the tentacles of the sea anemone, and clownfish is trapped near about these tentacles, so it is getting protection from the other predators. These are the various examples which we have studied which shows the commensalism in nature. And now our next topic is mutualism. Mutualism is a type of interaction where both interacting species derive benefits from each other. यानी इस एसोसिएशन में टू ऑर्गेनिजम्स विल लिव टुगेदर एंड बोथ विल बी बेनिफिटेड, एंड दिस इज कॉल्ड एज म्यूचुअलिज्म. Example is lichen. You have seen lichens growing on the bark of the trees, and these lichens, what they do? This lichen is, it is an association between fungus and alga. यानी alga और fungus जो हैं वो together रहेंगे. alga जो है वो photosynthesis करेगी because it has green pigments, and fungi जो है, क्योंकि fungi के पास thread like structures means hyphae are there, so this hyphae will derive the water and minerals and will give it to the alga. So here both are benefited because alga is preparing food and both are eating, and what the fungi are doing, जो fungal hyphae हैं वो उसके लिए raw material ला रहे हैं फोटोसिंथेसिस के लिए. तो यहाँ पर क्योंकि दोनों ही ऑर्गेनिजम्स, फंगस एज वेल एज एल्गा, both are getting benefit, so it is called as mutualism. Cyanobacteria is blue green algae.
Then next association or next example of mutualism is mycorrhiza. माइकोराइज़ा में हम क्या देखते हैं कि जो फंगस है वो हायर प्लांट्स की रूट्स में रहना शुरू कर देती है. सो व्हाट विल बी द बेनिफिट? जो फंजाई है सेम इट विल एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड इट विल प्रोवाइड टू द roots of the higher plants, and roots will do photosynthesis, and roots or the plant will do photosynthesis, and fungi will get the food, or fungi will get the energy in the form of carbohydrates. So here both are benefited. So this is an example of mutualism. Pollination. In pollination in nature also we see that there is pollination. What is pollination? Transfer of pollen grains from anther to stigma, and we have studied that there are various agents which help in pollination. They may be biotic and they may be abiotic. And if we talk about the biotic agents like insects, जो इंसेक्ट्स हैं जो फ्लावर्स पे विज़िट करते हैं, तो जब वो फ्लावर्स पे विज़िट करते हैं किसके लिए विज़िट कर रहे हैं? वो दे आर विजिटिंग द फ्लावर्स फॉर टेकिंग द नेक्टर्स, जो फ्लावर्स के पास जो जूसी सब्सटेंस प्रेजेंट है उसके लिए. एंड इन टर्न वो क्या करेंगे, क्या उसके लिए हेल्प करेंगे कि दे विल कैरी द पॉलन ग्रेन्स. वो पॉलन ग्रेन्स को कैरी करेंगे एंड व्हेन दे विल विजिट द अनदर फ्लावर दीज पॉलन ग्रेन्स विल बी dusted to the stigma of another flower, and in this way they help in pollination. So plants need the help of animals for pollinating their flowers and dispersing their seeds. This we have talked about insects, and now if we take the example of animals, animals also help in pollinating the flowers. एंड व्हाट द प्लांट्स ऑफर रिवॉर्ड, प्लांट उनको क्या रिवॉर्ड देंगे उसके बदले में? अपने जो हैं नेक्टर के बदले नेक्टर दे रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर बोथ आर बेनिफिटेड. सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म. बट व्हाट इज़ हैपनिंग, हम क्या देख रहे हैं कि अगर कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं उन्होंने अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस ले आए हैं. फॉर एग्जांपल इन मेनी स्पीशीज़, एक तो कोई वैल्यूएशन देखिए बेटा, अगर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर चेंज आता है तो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में भी चेंज आएगा, तभी वो क्या करेंगे? म्यूचुअलिज्म शो कर पाएंगे. तो यहाँ पर जो है को इवोल्यूशन ज़रूरी है. अगर हम किसी फ्लावर का एग्जांपल लेते हैं, इफ़ द फ्लावर शोज़ द इवोल्यूशन देन इट्स पॉलिनेटिंग स्पीशीज़ दे विल ऑल्सो शो पॉलिनेशन. फॉर एग्जांपल फिग ट्री. फिग ट्री के अंदर यहाँ पर एक क्लोज रिलेशनशिप है बिटवीन द फिग प्लांट एंड द पॉलिनेटर स्पीशीज़ ऑफ वास्प, यानी कि वास्प है वहाँ पर और जो फिग प्लांट हैं दोनों म्यूचुअलिज्म शो करते हैं यहाँ पर, और को इवोल्यूशन भी. इट मीन्स दैट अ गिवन फिग स्पीशीज़ कैन बी पॉलिनेटेड ओनली बाय इट्स पार्टनर वास्प स्पीशीज़. ये बहुत स्पेसिफिक हैं. फिग जो है, फिग को एक पर्टिकुलर वास्प की स्पीशीज़ ही फिग के फ्लावर को पॉलिनेशन कर सकती हैं, दूसरी स्पीशीज़ नहीं कर सकती. क्या होगा? जो फीमेल वास्प है यूजेस द फ्रूट नॉट ओनली एज एन ओवी पोजिशन. यहाँ पर जो वास्प है जब फिग फ्लावर को विजिट करती है तो वहाँ पर जो है अपनी एग लेइंग कर लेती है, और जो एग हैं बट यूजेस द डेवलपिंग सीड्स विद इन द फ्रूट फॉर नरिशिंग इट्स लार्वा. क्या करेगा? जो वास्प है वो फिग फ्लावर को विज़िट करेगा, फिग फ्लावर के अंदर अपनी एग ले करेगा, और जब फिग फ्लावर साथ में पॉलिनेट भी हो रहा है, जब पॉलिनेशन हो जाएगी व्हाट विल हैपन? फ्रूट फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन विल टेक प्लेस, और एग जो हैं दे आर स्टिल प्रेजेंट इन द फिग प्लांट, फिग फ्लावर. सो दे विल स्टार्ट डेवलपिंग और उनमें से लार्वा आने लग जाएंगे. जब लार्वा डेवलप होंगे दे विल बी इन द नीड ऑफ फूड, सो दे विल ईट द सीड्स ऑफ फिग. सो हियर वी आर सीइंग म्यूचुअलिज्म. बेनिफिट दोनों को हो रहा है. वास्प को जो है अपने एग ले करने का स्पेस मिल रहा है, लार्वास को फूड मिल रहा है, और प्लांट जो फिग फ्लावर है उसको क्या बेनिफिट हो रहा है कि जो वास्प हैं वो पॉलिनेशन कर रहे हैं. तो इस तरह से क्या हो गया? दोनों को बेनिफिट हो गया. सो इट इज़ अ काइंड ऑफ म्यूचुअलिज्म. देन female, I have oviposition means the place of laying the eggs. Then pseudocopulation, one more example, one we see in nature. Orchids जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा फ्लोरल पैटर्न्स शो करते हैं, और वो क्या करते हैं जब इवोल्यूशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन उन्होंने अपनी जो है स्पीशीज़ में शो किए हैं. वाई देयर इज़ नीड ऑफ इवोल्यूशन इन ऑल द ऑर्गेनिजम्स? All of you know that because the surroundings are changing, and to adjust in the changing surroundings it is necessary to evolve.
सो ऑर्किड्स ऑल्सो हैव शोन मेनी इवोल्यूशंस, बहुत ज़्यादा उनके अंदर हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है. एंड वाई दे आर इवॉल्विंग टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटर इंसेक्ट, कि जो इंसेक्ट हैं वो उनकी तरफ आएँ, और जब वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे तो गारंटेड पॉलिनेशन होगा, बिकॉज व्हेन दे विल विजिट द फ्लावर दे विल कैरी द पॉलन ग्रेन्स. तो यहाँ पर क्या होता है, ये कुछ जो प्लांट हैं ऑर्किड के, फॉर एग्जांपल ऑफिरस जो है वो एक सेक्सुअल डिसिट शो करता है. यहाँ पर क्या होता है कि जो फ्लावर है, वन पेटल ऑफ इट्स फ्लावर, जो फ्लावर का एक पेटल जो है वो फीमेल बी जैसा लगता है. सो व्हेन द मेल बी विजिट दैट फ्लावर, तो उसको क्या लगता है कि ये जो है एक फीमेल बी है, एंड दैट्स वाई दैट बी विजिट द फ्लावर. और जो है उससे क्या होगा, व्हेन दैट मेल bee will sit on the flower, it will carry, because it has visited another flower also, so it might have carried some pollen grains. और जो है फिर क्या हो जाएगा, जब वो उसके ऊपर विजिट करता है, वो तो किसके लिए विजिट कर रहा है, बिकॉज उसको लग रहा है कि देयर इज़ अ फीमेल बी, बट इन एक्चुअल वो क्या है, दैट इज़ द पेटल ऑफ दैट फ्लावर. सो इस तरह का जो प्रोसेस है इसे हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल डिसिट. और ये किस में देखने को मिलता है हमें, इन ऑर्किड्स. एग्जाम्पल इसका क्या है, ऑफिरस इसका एग्जाम्पल है. द मेल बी इज़ अट्रैक्टेड टू वॉट इट परसीव्स एज अ फीमेल, सूडो कॉपुलेट्स विद द फ्लावर, एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस इज डस्टेड विद pollen from the flower. Means the male bee will sit on that plant, that flower, and that it will dust the pollen grains. And when this same bee will visit another flower, it will transfer the pollen grains, and in this way pollination occurs. तो यहाँ पर क्या है, म्यूचुअलिज्म भी है, लेकिन यहाँ पर म्यूचुअलिज्म के अंदर दोनों को बेनिफिट हो रहा है. लेकिन ये जो एग्जाम्पल है ऑफिरस के अंदर जो है, ये एग्जाम्पल को क्या हो गया है, एक सेक्सुअल डिसिट शो कर रहा है यहाँ पर जो है. और नॉट ऑल ऑर्किड्स ऑफर रिवॉर्ड, यहाँ पर उस बी को कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा. Make this thing clear that whenever insects come to the flower, they take nectar, and in turn of that they carry the pollen grains. But in nature some examples are shown जो कि क्या करते हैं, जहाँ पर वो प्लांट उसको कोई भी रिवॉर्ड नहीं देता. फॉर एग्ज़ाम्पल ऑफिरस जो है वो उस इंसेक्ट को कोई अवार्ड नहीं देता, ना ही कोई नेक्टर दे रहा. सिर्फ वाई द इंसेक्ट इज़ विजिटिंग दैट फ्लावर, क्योंकि उसकी पेटल जो है दैट लुक्स लाइक अ फीमेल, एंड दैट्स वाई फॉर रिप्रोडक्शन दैट मेल बी विजिट द फ्लावर. सो दिस इज़ एन एक्सेप्शन. With this the chapter is over, and now you just go through the chapter. Tomorrow we will be discussing exercise of this chapter. Thank you.